इंजरी प्रिवेंशन में और इंजरी क्लासिफिकेशन में यू हैव एक्यूट इंजुरीज एंड ओवर यूज इंजुरीज। एक्यूट मतलब अचानक एकदम से होता है, ओवर यूज मतलब रिपीटेडली प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, मतलब ग्रेजुअली डेवलप होता है, एकदम से होता नहीं है, वो धीरे 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 से इंजुरी होता है। सो सेम थिंग स्किन इंजुरीज में भी यू हैव एक्यूट स्किन इंजुरीज, एकदम अचानक हो जाता है, और बिकॉज ऑफ रिपीटेड फ्रिक्शन और रिपीटेड प्रेशर ग्रेजुअली डेवलप होता है। दोज आर कॉल्ड ओवरयूज स्किन इंजुरीज। So now let us look into the skin injuries in sport. So आज के क्लास में आप लोग क्या क्या सीखेंगे? You will learn about the various types of wounds. Skin injury को wound बोला जाता है. Wound is nothing but a skin injury. So क्या क्या types है? Like open wounds, closed wounds, then उसके बाद फर्स्ट एड क्या देना है। जब भी कोई वुंड होता है तुम्हारे एथलीट को, तो फर्स्ट एड क्या देना होता है। ओपन वुंड्स के लिए अलग फर्स्ट एड होता है, क्लोज्ड वुंड्स के लिए अलग तरीके से फर्स्ट एड दिया जाता है। देन ओवरयूज इंजुरीज ऑफ द स्किन। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या चीजें इंजुरीज होने का चांस बढ़ाता है। एट द सेम टाइम प्रिवेंशन। As a coach, you should concentrate mainly on the prevention aspect. अगर तुम्हारे एथलीट को इंजुरी से आने से ही रोकोगे, then that is very helpful to your athlete. So, how to prevent these overuse skin injuries, especially overuse injuries are preventable. इसको prevent किया जाएगा. So, let us learn about, look into one by one. So, what is a wound? A wound is any type of injury to the skin. So in other words, a skin injury is called a wound. Skin injury is का specific name है, that is called a wound. So wounds are of two types. One is open wounds. Second is closed wounds. Open wounds में क्या होता है? Skin छिल जाता है, मतलब skin is cracked open, leaving the underlying tissue exposed to the outside environment. अंदर का जो टिश्यूज है वो बाहर दिखने लगता है, क्योंकि स्किन कंप्लीटली कट हो गया है। यहाँ पे स्किन ओपन हुआ है, that's why it is called open wound, and inside tissues can be seen to the outside, मतलब बाहर से हम देख सकते हैं। इसीलिए इनमें इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि स्किन कट हुआ है, स्किन के साथ साथ ब्लड वेजल्स भी, ब्लड वेजल्स जो ब्लड सप्लाई करता है स्किन को, वो भी कट होता है। दैट्स व्हाई देयर विल बी ब्लीडिंग, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि बाहर अंदर का टिश्यूज बाहर दिख रहा है, खुला हुआ है, इन्फेक्शंस होने का चांस ज्यादा रहता है ओपन वुंड में। देन व्हाट अबाउट क्लोज्ड वुंड्स? क्लोज्ड वुंड्स में स्किन इज इंटैक्ट, मतलब स्किन, ये नीचे वाला फिगर में देखो, देयर इज अ वुंड बट स्किन इज इंटैक्ट, स्किन निकला नहीं है, एंड द अंडरलाइंग टिश्यू इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू द आउटसाइड वर्ल्ड. So this is an example of a closed wound. Let us look into the classification in detail now. So wounds are classified into two types. One is open wound, one is closed wound. Open wounds का अलग अलग तरीके का नाम दिया गया है based on how they are injured, and treatment also depends on the type of the open wound. So open wounds का नाम क्या क्या है? एक है abrasion, second is laceration, third one is cut or incised wound, fourth one is puncture wound, fifth one is avulsions. और भी बहुत तरीके का है, but like penetrating injury, stab injury, gunshot wounds, but these are not common in sports, इसलिए वो हम डिस्कस नहीं करेंगे.
So the most common open wounds in sports are abrasions, lacerations and cuts or incised wounds. ये 3 common है. Puncture wound and avulsions may be seen sometimes. And what about the closed wounds? Closed wounds are examples are contusions. मतलब नील पड़ता है ना जो, that is called contusion. And hematoma. If the contusion is large, you call it as a hematoma. So these are the examples of closed wounds. Open wounds, abrasion, laceration, cut or incised wound, puncture wound, avulsions. अभी हम देखेंगे एक एक को. So if you see here, abrasion. What is an abrasion? An abrasion is a superficial wound in which topmost layer of the skin, that is the epidermis, is scraped off. Abrasions are often caused by sliding fall onto a rough surface. यहाँ पे only ऊपर upper layer of the skin में बहुत layers होते हैं, that we'll be discussing now. So only the superficial layer or the epidermis is lost. Whereas laceration is irregular tear-like wound caused by some blunt or sharp trauma. Irregular tearing of the skin, you call it as a laceration. Then what about puncture wounds? It is caused by an object puncturing the skin, like a splinter, nail or needle. कोई nail चुभ जाता है, कील चुभ जाता है ना कभी कभी पैर में, that makes a puncture wound. Then incisions or cuts, ये क्या होता है? They are caused by clean sharp edged objects such as knife, razor, glass splinter. कोई कांच से कट लग गया, नाइफ से कट लग गया, सो क्लीन होता है ये शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट. मतलब कोई शार्प ऑब्जेक्ट से अगर इंजरी होता है, जैसे ब्लेड हो गया, नाइफ हो गया, सो these come under incised wounds or cuts. Then what is avulsion? Avulsion is a part of body detached from the underlying tissue. अगर नीचे वाला फिगर आप लोग देखोगे तो चमड़ी पूरा निकल के, स्किन पूरा निकल के आ गया है. So like that, if the skin is removed or any part is crushed, you call it as an avulsion. So you can see the 5 figures explaining the different types of wounds. Before understanding the skin injuries, first thing what you should understand is layers of the skin. So skin में क्या क्या layers होते हैं? एक है epidermis, that is the superficial layer, जो सबसे ऊपर रहता है. Second is the dermis, that is the middle layer, जो epidermis के नीचे रहता है. And दोनों के नीचे रहता है आपका subcutaneous fat. So all these 3 layers, इसी में there will be many hair follicles, sweat glands, वो सब रहता है. That in detail no need to understand. Main thing is you have to understand the epidermis, dermis and subcutaneous fat. अभी हमारा जो इंजुरी है, स्किन इंजुरी, कितना डीप है, that injury is named based on the depth also. For that you need to understand the layers of the skin, epidermis, dermis and subcutaneous fat. Then let us learn in detail about abrasions. Abrasions are nothing but they are the superficial wounds. Superficial मतलब यहाँ पे only ये जो 3 layers में only epidermis is injured. That's why they are superficial. सबसे ऊपर वाला layer निकल जाता है और damage उसको होता है. So what are the other names of abrasions that are given in sports? उस दिन previous class में if you remember we have discussed about turf burns. रगड़ पड़ने की वजह से, skid होने की वजह से, due to friction between the skin and the surface or the ground or the turf, or mat burns, mat के ऊपर बार बार skid करने की वजह से. Strawberry wounds, क्योंकि इससे खून bleeding, heavy bleeding नहीं होता है, but still छोटे epidermis में जो छोटा छोटा blood vessels है वहां से bleeding होता है. That's why these injuries will look pink in color. That's why they are also called strawberry wounds.
So mainly turf burn, mat burn. अगर देते हैं एग्जाम में तो you have to write about the abrasions. Large abrasion is called graze. अगर abrasion जैसे साइक्लिंग में cyclists they will be doing road cycling, suddenly they fall on the road, so they will get large abrasions over the thigh, over the lateral side of the thigh, over the back जिसके ऊपर गिरा है, रगड़ पड़ा है. So these large abrasions are called grazes. How they are caused? They are caused by friction. Friction मतलब rubbing between the two surfaces, between the skin and any rough or hard surface at a high speed. जितना स्पीड से स्किड करोगे उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा और उतना बड़ा abrasion होगा. They are also caused by scratch from an object or fellow athlete. कभी कुछ स्क्रैच पड़ गया और कोई मतलब अपना नाखून से स्क्रैच किया, then also you will get an abrasion. So abrasions are painful क्योंकि स्किन के ऊपर there are many nerve endings, that's why they are mainly painful, and you will find a redness also over the site of abrasion. These are the symptoms. So abrasions they scab quickly, मतलब abrasions जल्दी heal हो जाता है क्योंकि only superficial skin is lost and heal in a few days. कुछ ही दिनों में heal हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है ये सूखने के लिए, ये heal होने के लिए. Clear? About treatment we will learn later. Now let us look into the laceration. What is laceration? Laceration is a deep wound. अभी हमने जो स्किन का लेयर्स देखा है, here you can see in a laceration स्किन भी डैमेज हुआ है, डर्मिस भी डैमेज हुआ है, एंड इफ पॉसिबल मतलब डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ कितना डीप लैसरेट हुआ है, सबक्यूटेनियस फैट भी इंजर हो सकता है. अगर और डीप है तो लैसरेशन मसल अंदर मतलब उस स्किन के नीचे जो मसल है उसको भी इंजर करता है. सो the depth is more. Abrasions are superficial, lacerations are deep. This is the difference. It involves both the epidermis and dermis. दोनों involve हो जाता है, and sometimes even subcutaneous fat and underlying muscle also. Cause क्या है laceration का? It is caused from a blunt force or with a sharp object. कुछ भी किसी से भी laceration हो सकता है. Example क्या है? An elbow hit during basketball. Hit elbow से अगर किसी को कोने लगा दिया और फुटबॉल में टैकलिंग किया, मतलब बुरी तरह से टैकलिंग किया, और बॉक्सिंग में पंच. इफ एनीबडी पंचेस, इफ एन अपोनेंट पंचेस अ बॉक्सर, then also lacerations can occur. Sharp object like a piece of equipment, कोई equipment से मारा है. So laceration में क्या फोर्स होना चाहिए? एक तो फोर्स प्रेशर होना चाहिए with the object or with the opponent's hand, anything. At the same time there should be some shear. shear मतलब ऐसे मतलब प्रेशर के साथ साथ shearing force. If you learn in biomechanics में सीखा होगा, there are many types of forces. So laceration में प्रेशर भी होता है, shear भी होता है. abrasion में only friction होता है, but cut में there will be only pressure by the object, not shearing force. shearing होता है करके laceration का जो छिल गया स्किन उसका जो borders होता है दोनों वो irregular होता है. The margins will be irregular in laceration. If you see in cut, the margins will be regular and opposed. तो suture करना easy कौन सा, healing कौन सा easy है? Cut is always easy to heal, heals faster compared to lacerated wound. That you should remember. Let us look into the high risk sports for laceration. Athletes participating in sports using equipment with sharp edges, contact and collision sports. Contact and collision sports infections के लिए भी common है, injuries के लिए भी common है क्योंकि contact होता है वहां पे. Then what are the symptoms? Pain, bleeding and swelling. तीनों होता है यहाँ पे भी. Bleeding, abrasion में it will be from the superficial blood vessels, whereas in laceration the bleeding will be from deep blood vessels also, because dermis is also lost. The inner layer of the skin also is lost. And अगर
लैसरेटेड वुंड के जगह पे अगर नस दब मतलब नर्व जो है, नर्व्स होता है, ब्लड वेसल्स होता है बॉडी में, सो नर्व अगर दबता है देन नम्बनेस, टिंगलिंग वो भी आता है। और अगर ब्लड वेसल इंजर होता है तो ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग होता है। लैसरेशंस को कैसे प्रिवेंट करोगे? प्रॉपर इक्विपमेंट एंड एनफोर्सिंग सेफ्टी रूल्स यहाँ पे आता है। इफ यू रिमेंबर, फुटबॉल में टैकलिंग मना है, सो रूल चेंजेस। बॉक्सिंग में हेड बटिंग की वजह से लैसरेशंस ज्यादा होता है, इसीलिए हेड बटिंग बॉक्सिंग में अवॉइड करते हैं, ठीक है। सो रूल चेंजेस गेम में लाके द फेडरेशंस हैव reduced the injuries in their sports. So you should understand and you should know what are the rule changes that have occurred. हर एक स्पोर्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है. Just examples I have given, like in football, tackling is punishable offense. So in boxing, headbutting नहीं करना है. So all these rule changes have occurred because of injuries. Now let us look into the incised wounds or cuts. Cuts are also common in sports, contact sports. So they are either superficial or deep. Cut ऊपर only epidermis को भी लग सकता है और inside the dermis. Cut का depth varies. It varies. It may be superficial or it may be deep. The margins are regular, whereas in laceration, the margins are irregular. That you should remember. And can be opposed. मतलब stitch करना easy है cuts का. Because the margins are opposed, अगर कभी stitch भी नहीं करवाया फिर भी ये healing होता है. Whereas laceration will not heal if you don't stitch it. It is caused by sharp-edged weapons like knife, blades, scissors, etc. In sports by weapons like fencing weapon, football studs. In boxing by opponents, punch, headbutting. All these are the examples of mechanisms which cause the cuts in sports. Then usually incised wounds, डॉक्टर्स जो सर्जरी ऑपरेशन करने के टाइम जो करते हैं, जो स्किन ओपन करते हैं, दैट इज एन इंसाइज्ड वुंड. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंसाइज्ड वुंड. क्योंकि वो लोग क्लीन स्टेराइल सर्जिकल ब्लेड या नाइफ से, स्टेराइल नाइफ से कट करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज इजी टू सूचर. एंड इन कट्स देयर वोंट बी एनी shear force. Clear? Now let us learn about the puncture wounds. Puncture wounds क्या है? They are caused by penetration of skin by sharp object. कोई sharp object skin के अंदर चुभ गया है, जैसे कील चुभ गया. And these puncture wounds are very deep. सबसे deep कौन सा wounds होता है? वो puncture wounds होता है. Deep मतलब ये जितना breadth है, कोई भी वुंड का एक लेंथ होता है, लेंथ और डायमीटर, और एक डेप्थ होता है. सो पंक्चर्ड वुंड्स का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि डायमीटर और द लेंथ विल बी स्मॉल, वेयरएज द डेप्थ मतलब अंदर डीपली ज्यादा डेप्थ में होता है. सो इन कट्स एंड लैसरेशंस लेंथ ज्यादा होके डेप्थ कम होता है, होने का चांस रहता है. बट पंक्चर्ड वुंड्स उल्टा, length or diameter will be small and depth will be more. That's why these wounds are dangerous. Dangerous क्यों? Because you don't know, ज्यादा डेप्थ है करके इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है. That's why कभी भी पंक्चर्ड वुंड को कंपल्सरीली हॉस्पिटल लेके जाके उसको अच्छी तरह से डिब्राइडमेंट मतलब क्लीनिंग, ड्रेसिंग अच्छी तरह से कराना है. And you have to take a lot of care. They heal also very late, क्योंकि डीप, जितना डीप वुंड होता है उतना हीलिंग लेट होता है. सिवियरिटी ऑफ वुंड मतलब डेप्थ, इट डिपेंड्स ऑन द मेनली ऑन द डेप्थ. सो पंक्चर्ड वुंड्स कभी इग्नोर नहीं करना है. स्पोर्ट्स में कैसे होता है पंक्चर्ड वुंड्स? यूजुअली नेल्स, टैग्स, आइस पिक्स, नाइव्स, टीथ से भी होता है तो पंक्चर्ड वुंड होता है. जैसे एनिमल का, किसी एनिमल का टीथ लग गया अंदर डॉग बाइट में, बिकॉज शार्प होता है टीथ, इसीलिए पंक्चर्ड वुंड होता है. एंड स्पाइक्स, यूजुअली क्या होता है इन एथलेट्स दे यूज स्पाइक्स फॉर देयर शूज. सो अगर ये स्पाइक किसी बंदे को लगा है बाय एनी मिस्टेक और एनी चांस,
So that also creates a puncture wound. Compulsorily, it requires treatment by a physician or in a hospital. Then they can become infected easily due to dirt and germs carried deep in the tissue. Because they are deep, infections can occur. Now let us look about the avulsions. Avulsions मतलब ये क्रशिंग की वजह से होता है. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में ज्यादातर avulsions होते हैं. So these are the wounds where a part of body or skin is detached from the part underneath. Tissue is completely ripped from its source. यहाँ पे देखिए फिगर में जो फिंगर का जो स्किन है पूरा निकल ही गया है. So एग्जाम्पल क्रश इंजुरीज. फिंगर क्रश इन मशीनरी. किसी भी मशीन में अगर हाथ रखा, स्किन चॉप्ड इन मशीन, जैसे चॉपिंग हो जाता है. चॉपिंग मतलब पूरा एकदम से निकल जाना. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, all these are you can see avulsions. These are not that common in sports, but in sports like cycling where there is a chance of accidents, you can see the avulsions also. So यहाँ पे क्या करना है, स्किन फ्लैप. इसको जो निकल गया स्किन उसको बोलते हैं स्किन फ्लैप. स्किन फ्लैप इज टू बी केप्ट इन इट्स प्लेस एंड बैंडेज्ड. यहाँ पे अगर आप लोग फर्स्ट एड करने के टाइम ये एक चीज याद रखना है कि वो चमड़ी जो निकल गया उसको निकालना नहीं है, उसको रख के ही बैंडेज करना है, ताकि अगर वो स्किन में कुछ भी लाइफ है तो डॉक्टर कैन रीसूचर इट अगेन. अगर मान लो कंप्लीटली निकल गया स्किन या फिर कोई पार्ट, तो क्या करना है, द डिटैच्ड पार्ट शुड बी रैप्ड अप इन गॉज डिप्ड इन नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन and kept in jar or polythene cover containing normal saline and sent to hospital. अगर कोई भी फिंगर या कुछ पार्ट निकल गया बॉडी से जब कोई इंजरी होता है तो उसको एक गॉज पीस में मतलब बैंडेज क्लॉथ, गॉज पीस इज नथिंग बट ए बैंडेज क्लॉथ विथ कॉटन इनसाइड. सो उसमें रख के नॉर्मल सलाइन में डिप करके नॉर्मल सलाइन को एक नॉर्मल सलाइन वाला एक जार और बॉटल या फिर एक पॉलिथीन कवर जो जिपलॉक कवर्स होता है उसमें नॉर्मल सलाइन डाल के उस पार्ट को उसमें रखना है ताकि वो जिंदा रहे, वो सूख न जाए, ताकि अगर जरूरत पड़े तो उसी पार्ट को डॉक्टर्स रीसूचर कर सकते हैं. सो दिस इज द थिंग दैट शुड बी फॉलोड इन avulsions. So the most common injuries in sports, open injuries, open wounds in sports are abrasions, lacerations and incised wounds or cuts. सबसे superficial कौन सा है? That is the abrasion. Only epidermis is lost. In lacerations and cuts, difference क्या है दोनों में? दोनों deep wounds हो सकता है, laceration और cut. Cut में भी superficial और deep. Lacerations and punctured wounds are deep. And what is the difference between laceration and cut? Cut में the margins will be smooth and regular and the margins will be opposed. Opposed मतलब दोनों पास में तो आप ला सकते हो. Whereas in laceration the margins will be irregular and cannot be opposed. Lacerations are usually deep. Cuts can be deep or superficial. This is the difference. क्योंकि एग्जाम में ऐसे differences पूछने का चांस रहता है. That's why you should understand the differences. And force, if you see the force, abrasions are caused by friction force, cuts are caused by pressure with a sharp object, lacerations are caused by pressure as well as a shearing force. Can be either, lacerations can be either caused by sharp object or caused by blunt object, कुछ भी cause कर सकता है. What about the punctured wounds? Main points क्या याद रखना है punctured wounds में? Punctured wounds, the diameter is small, whereas the depth is longer. That's why there is a chance of infection and delayed healing. That's why you should always take a person with a punctured wound to a doctor or to a hospital so that the wound is cleaned thoroughly. So सबसे deep क्या है? Punctured wounds हो सकता है. Lacerations are also deep wounds. Superficial, abrasions. Cuts or incised wounds, they may be superficial or they may be deep. With this short background,
let us learn about the first aid for sports injuries. So first aid में 3 चीजें सिंपल I have मतलब बहुत मैंने छोटा सा बना के सिंपल बना के बता रही हूँ. Only 3 things you have to follow during first aid for sports injuries. One is stop the injury, stop the bleeding. Second one is clean the wound. Third one is cover the wound. पहले bleeding रोको, उसके बाद साफ करो wound को, उसके बाद उसको cover करो. These are the 3 things. In this order you have to follow. So now let us learn in detail. Minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own. अगर abrasion है, bleeding अपने आप ही रुक जाता है. या minor cut है, small cut, bleeding will be stopped by its own. If they don't stop, अगर थोड़ा deep है, then what you should do? You should apply gentle pressure with a clean cloth or bandage. एक clean cloth या फिर bandage लेके pressure apply करना है, as seen in this figure, as shown in this figure. But bleeding stop करने से पहले सबसे पहले क्या करना है? कोई भी बंदा injured है तो जो person first aid provide कर रहा है, he has to wear gloves. This is very important. To especially when you treat the open wounds, you have to wear the gloves to protect yourself. खुद को बचाने के लिए, क्योंकि उसमें अगर कोई बीमारी है that can be transmitted by blood. What are the bloodborne infections we have discussed in the last class? Like hepatitis, HIV, all these will be transmitted through the blood. That's why you have to wear gloves. Then you have to apply the pressure. Pressure can be applied for 20 to 30 minutes also, depending on the bleeding. Bleeding ज़्यादा है तो ज़्यादा देर pressure apply करना है. Pressure क्यों apply करना है? To stop the bleeding. And if possible, elevate the wound. Wound को elevate करना है. Elevate करने से क्या होता है? Especially the venous blood. अगर vein से जो bleeding आ रहा है, वो कम हो जाता है. Elevate करने से. That's why you have to elevate the wound above the heart level. These are the 2 things. First, wear the gloves, apply pressure, then elevate the wound. उसके बाद अभी देखेंगे second thing what you should do, you should clean the wound. wound को कैसे clean किया जाएगा? Simple tap water will serve the purpose. और distilled water है, that will be better. और आप लोगों के पास अगर normal saline है, normal saline एक fluid है, saline fluid मतलब जो normally जो patients है उनको चढ़ाते रहते हैं. So that normal saline also can be used to clean the wound. So rinse the wound with clean water. अच्छी तरह से wound को tap water या running water में साफ करना है. उसके बाद अगर कोई मिट्टी अगर मड में गिरा, ठीक है, तो अगर मिट्टी या कुछ सैंड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, डर्ट पार्टिकल्स है अंदर, तो उसको एक स्टेराइल फोर्सेप्स से निकाल सकते हो. हाथ से नहीं निकालना है, हाथ लगाना भी नहीं है वुंड के अंदर, दो यू आर वेयरिंग ग्लव्स. सो एक प्लक्कर मतलब जो अल्कोहल में डिप करके, क्लीन अल्कोहल या स्पिरिट जो भी अवेलेबल है उसमें डिप करके स्टेराइल प्लक्कर या ट्वीजर से उसको निकालना है डस्ट पार्टिकल को. देन पहले वुंड को क्लीन करना है, उसके बाद वुंड के जो सराउंडिंग एरिया है, क्लीन द एरिया अराउंड द वुंड यूजिंग सोप एंड अ वॉश क्लॉथ. सोप मतलब लिक्विड सोप, और सैवलॉन यूज कर सकते हो. सैवलॉन इज द बेस्ट वन टू क्लीन द वुंड. डेटॉल, सैवलॉन ये सब यूज कर सकते हो. तो पहले वुंड क्लीन करके उसके बाद उसके आसपास की एरिया जहां पे खून वगैरह लग सकता होगा, दैट सराउंडिंग एरिया हैज टू बी क्लीन लेटर. First you should clean the wound, then surrounding wound you have to clean the surrounding area of the wound, you have to clean it afterwards. पहले वो करके बाद में wound नहीं clean करते हैं, ठीक है. Then third point, important point is cover the wound. If the bleeding stops or slows, bleeding कम हो गया है या कभी कभी क्या होता है completely रुक जाता है अगर deep नहीं है तो. अगर बहुत डीप है, ब्लड वेसल्स कट हुआ है, ब्लीडिंग
मतलब धीरे से हो जाता है बट रुकता नहीं है. So at that time what you should do, you should cover the wound with a clean dressing and bandage. Now let us know what is a dressing. Dressing is nothing but a sterile pad or compress used to cover wounds to control the bleeding and prevent further contamination. Dressing करने से क्या होता है, खुला नहीं रहता है, इसीलिए उसके ऊपर डस्ट वगैरह या इन्फेक्शंस वगैरह नहीं आता है. A dressing should be large enough to totally cover the wound with a safety margin on all sides beyond the wound. इसका मतलब यह है, ड्रेसिंग आप लोग जो करोगे पूरा वुंड को कवर करना है. इट इज नथिंग बट जैसे आप लोगों का बैंडेज क्लॉथ के अंदर कॉटन रख के फोल्ड करने से ड्रेसिंग बन जाता है. इट्स वेरी सिंपल. स्टेराइल गॉज पीस जो है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बैंडेज क्लॉथ. यहाँ पे फिगर में देख सकते हो. उसके अंदर कॉटन रख के उसको फोल्ड कर लो. दैट विल बिकम अ ड्रेसिंग और ड्रेसिंग पैड. और यू कैन परचेज फ्रॉम द मार्केट ऑल्सो. रेडीमेड ड्रेसिंग पैड्स अवेलेबल है मार्केट में डिफरेंट साइजेस का. सो वो रख के, और वुंड का मतलब वुंड से भी बाहर होना चाहिए. वुंड को पूरा कवर करके उसका सराउंडिंग एरिया भी कवर करना है ड्रेसिंग. वो रख के उसके ऊपर बैंडेज क्लॉथ डाल के ड्रेसिंग को उसी जगह पे रखना है, सिक्योर करना है. So what does a bandage do? A bandage is used to secure the dressing in place and to apply pressure to the bleeding wounds. Bandage firmly bandage करना है. firmly मतलब ज्यादा टाइट नहीं, ज्यादा भी लूज नहीं. ज्यादा टाइट डालोगे तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा और ज्यादा लूज डालोगे तो कोई फायदा नहीं होगा. इसीलिए जैसे आप लोग बैंडेज बांधते हो firmly, you have to bandage it firmly. Clear? So now let us learn about the healing and return to play. अभी मैं तो हिंदी में ही तो बात कर रही हूँ. किसने लिखा हिंदी में समझा दो मैडम. और कहाँ से हिंदी सीखूं मैं? हाँ, tweezers. Someone has asked me what are tweezers. Tweezers are nothing but plucker. जो plucker you know, eyebrows pluck करते हैं. Okay. So it is something like a forceps. Forceps जो होता है, और you can see in the Google. फिगर देख सकते हो आप लोग Google में सर्च करके. It is something to hold and to remove. So now let us learn about the healing and return to play. अगर आपके प्लेयर को कट लग गया या फिर लैसिरेशन हुआ, सम ओपन वुंड हुआ, तो कब गेम में खिलाना है. ओके. सो yeah, Dettol also can be used to clean the wound, but Savlon is better क्योंकि Savlon में सोप होता है and Dettol जलता है. That's why Savlon is better. Okay, let us discuss about chats later. Now let us learn about the healing and return to play. Bleeding stop हो गया तो बैंडेज डाल के खिला सकते हो. जैसे बॉक्सिंग जैसे गेम्स में, रेसलिंग जैसे गेम्स में क्या होता है, अगर कट लग गया, सो व्हाट द डॉक्टर रिंग साइड फिजिशियन बोलते हैं, जो रिंग साइड बैठते हैं, व्हाट ही विल डू, और नाउअडेज इवन ए कटमैन हैज कम, सो दे विल सी द इंजुरी, दे विल अप्लाई प्रेशर. इफ द ब्लीडिंग स्टॉप्स, ड्रेसिंग करके द एथलीट कैन प्ले अगेन. इफ द ब्लीडिंग विल नॉट स्टॉप और इफ द वुंड इज डीप, देन you should not allow him to play, क्योंकि वो ब्लड से पूरा कंटामिनेट हो जाता है. कंटामिनेट मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे को स्प्रेड हो जाता है और वो ब्लड पूरा गंदा कर देता है. That's why you should not allow if there is bleeding. If the bleeding is stopped, then if you have applied pressure or bandage करके, you can make the athlete to play. And when to take to a doctor? हमेशा कभी कभी क्या होता है, कट हुआ है तो हमें डाउट आता है कि ड्रेसिंग करके छोड़ दे या डॉक्टर के पास लेके जाए, हॉस्पिटल लेके जाए. सो दिस इज द रूल. कट्स लेस देन और इक्वल टू 0.25 इंच और 6 मिलीमीटर. 6 मिलीमीटर से भी छोटा है अगर कट,
डेप्थ बता रही हूँ। कट का मतलब कुछ भी ओपन वुंड का टू थिंग्स होता है, एक है डेप्थ होता है, एक है उसका डायमीटर होता है और लेंथ होता है, लेंथ और डायमीटर. So if it is less than 6 millimeter deep, you can treat at home. And if it is less than 1.3 centimeter long, मतलब 1.3 सेंटीमीटर से भी अगर छोटा है तो घर में ठीक कर सकते हो, सूचर करने की जरूरत नहीं है. एंड हैव स्मूथ एडजेस, अगर वो लैसिरेशन की तरह इरेगुलर मार्जिन है तो डॉक्टर के पास लेके जाके एक सूचर लगा दो. अगर स्मूथ एडजेस है, एग्जैक्ट कट है, जैसे ब्लेड से कट गया, चूरी से कट गया, then if these dimensions, if it is less than 6 millimeter deep or less than 1.3 centimeters in length, you can treat it at home. If it is more than that, you have to send him to a hospital for suturing or stitching. Deep and large wounds will be treated by physician. Return to play depends on, एक तो मैंने बताया ब्लीडिंग स्टॉप है तो खिला सकते हो, डीप वुंड है तो ब्लीडिंग इतना जल्दी स्टॉप नहीं होगा, तो इट्स बेटर यू विल नॉट मेक हिम टू प्ले. देन लोकेशन ऑफ द वुंड, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका जो ओपन वुंड है, इधर कट या लैसिरेशन, एब्रेशन, कुछ भी ओवर द जॉइंट है, जैसे नी जॉइंट के ऊपर, एल्बो जॉइंट के ऊपर, किसी भी जॉइंट के ऊपर अगर कट है तो जल्दी गेम में नहीं लेके जाना है, क्योंकि जॉइंट का मूवमेंट की वजह से वो कट हीलिंग नहीं होता है, तो उसको इसीलिए इमोबिलाइज करना होगा, जॉइंट का मूवमेंट कम करना होगा. अगर जॉइंट के ऊपर कोई ओपन वुंड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड एंड द स्पोर्ट इन विच पार्टिसिपेशन डिजायर्ड. अगर फुटबॉल में मान लो एल्बो में कट है, फुटबॉल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन वेट लिफ्टिंग में फर्क पड़ता है. That's why it depends on the type of the sport also, कब खिलाना है. कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में अगर कट है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में अगर तुम फिर से खिलाओगे तो फिर से दोबारा कट लगने का चांस रहता है. That's why you have to think all these things. एक है सीवियरिटी ऑफ द इंजुरी, कितना डीप है, एक है लोकेशन ऑफ द वुंड, जॉइंट के ऊपर हो ना हो, तीसरा ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट दे रहा है, अगर डॉक्टर ने इन्फेक्टेड है करके एंटीबायोटिक दिया है तो और ज्यादा दिन रेस्ट करवाओ उसको, एंड कौन सा स्पोर्ट में कहाँ पे जगह, कौन सी जगह पे कट है, उसके बेस पे आप लोग डिसाइड करना है. एंड इफ द कट इज ओवर अ जॉइंट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, विद अ वाइड रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट में मूवमेंट होता रहता है. जॉइंट में क्यों रिस्क है, क्योंकि मूवमेंट होता है वहां पे, जितना मूव करोगे उतना जुड़ेगा नहीं. That's why you need immobilization. Some wounds may allow immediate return if the bleeding is stopped and the wound is adequately covered, like in boxing. Boxing में अगर superficial cut है तो pressure apply करके dressing करके फिर से खिलाते हैं, ठीक है. Clear? This is all about the open wounds. Now let us learn about the closed wounds. क्लोज्ड वुंड्स दो तरीके का होते हैं. कंट्यूजन है, अगर कंट्यूजन ज्यादा है, ब्लीडिंग ज्यादा है, देन यू कॉल इट एज अ हेमाटोमा. सो व्हाट इज अ कंट्यूजन? कंट्यूजन इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ब्लड अंडरनीथ द स्किन ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स मतलब कंट्यूजन हमेशा ब्लंट फोर्स से होता है, शार्प फोर्स से नहीं होता है, शार्प फोर्स से कट होता है. सो द मेन डिफरेंस बिटवीन कंट्यूजन, क्लोज्ड वुंड एंड ओपन वुंड इज it is caused by a blunt force. जैसे बॉल लगा दूर से, हॉकी खेल रही हो, बॉल लग गया या स्टिक से कोई मारा, so that blunt force will lead to a contusion. यहाँ पे क्या होता है, स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स है उसमें ट्रॉमा होता है, वो स्प्लिट मतलब रप्चर होता है, ओके, ब्लड आ जाता है. स्किन इज इंटैक्ट एंड डिसकलर्ड, इसीलिए ब्लड आया करके कलर चेंज हो जाता है स्किन का. Contusions are also called bruises. Graze मतलब abrasion, bruise मतलब contusion. They are caused by trauma to blunt, due to blunt force. Example like force hit by a ball, bat और a goal post. कभी कभी क्या होता है, गोल पोस्ट पे पैर लग जाता है, especially in games like football. So और punch by opponent. कभी कभी आप लोग देखा होगा, एक पंच पड़ा मतलब आंख पूरा ब्लैक हो जाएगा, that is called black eye. That is nothing but a contusion.
सो स्किन कंफ्यूजन टेक्स 1 to 2 weeks टू हील। स्किन के ऊपर जो कंफ्यूजन होता है, एक्चुअली कंफ्यूजन स्किन के ऊपर भी हो सकता है, मसल के ऊपर भी हो सकता है और बोन के ऊपर भी हो सकता है। जो नील पड़ता है बोलते हैं ना, दैट इज नथिंग बट कंफ्यूजन। लार्ज कलेक्शन और एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोमा। अगर ब्लड बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ, खास करके मसल में, जैसे बड़े बड़े मसल्स में जो होता है, जैसे क्वाड्रिसेप्स होता है, हैमस्ट्रिंग होता है, या कभी कभी स्किन के नीचे, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन दी, अगर प्लेट पड़ा, जो तुम ट्रेनिंग कर रही हो, वेट ट्रेनिंग कर रही हो, प्लेट पड़ा पैर के ऊपर या डंबल पड़ा, सो डिपेंडिंग ऑन दी एरिया, अगर ज्यादा एरिया पे ट्रॉमा हुआ मतलब कांटेक्ट हुआ मतलब you will get a bigger collection of blood, that is called hematoma. Hematoma can also be seen, में आप लोगों को समझना इजी है करके लिखा है, एक कॉलीफ्लावर ईयर करके होता है, आप लोग देखा होगा रेसलर्स और बॉक्सर्स में खास करके क्या होता है कान में, जैसे यहाँ पे फोटो में दिखाया नीचे, so there will be collection of blood in the ear because of repeated pressure, so this collection of blood is nothing but hematoma. इसको बोलते हैं, ईयर को ऑरिस बोलते हैं लैटिन वर्ड में। सो ये कॉलीफ्लावर की तरह, गोभी की तरह फूल जाता है कान, सो दैट इज कॉल्ड, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हिमेटोमा, दैट इज हिमेटोमा ऑरिस, सीन इन रेसलर्स एंड बॉक्सर्स। हुआ किसी में यहाँ पे डिप्लोमा जो कर रही हो जिसमें हिमेटोमा ऑरिस है, थोड़ा चैट कर दो मुझे, चैट में लिखो किसी में है तो। वेरी गुड, अब देखो हुआ है, विशाल कुमार को भी हुआ है, श्रीराम जट को भी हुआ है, वेरी गुड। सो दिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ कंफ्यूजन और कलेक्शन ऑफ ब्लड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हिमेटोमा। हाँ, किसी ने पूछा कितना दिन लगता है, स्पोर्ट्स में ना, स्पोर्ट्स में नहीं, मतलब मेडिसिन में कितना दिन, इसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है ना, इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी। छोटा इंजुरी है तो जल्दी ठीक हो जाता है, बड़ा इंजुरी है तो लेट ठीक हो जाता है, तुम जितना रेस्ट दे रहे हो उसके बेस पे भी डिपेंड होता है, तुम ज्यादा पैर को हिला रहे हो तो ठीक होने में टाइम लगता है, उसके ऊपर इन्फेक्शन अगर है तो और ज्यादा टाइम लगता है हील होने में, बट अ टेंटेटिव टाइम विल बी गिवन। लाइक डिस्कलरेशन ऑफ कंफ्यूजन, पहले जब कंफ्यूजन होता है लाल रंग में होता है, कुछ दिन के बाद ब्लू कलर में हो जाता है, 2 दिन के अंदर, उसके बाद 3 दिन के बाद ब्लूइश ब्लैक में, फिर ग्रीन कलर में हो जाता है, फिर येलो कलर में हो जाता है, येलो कलर में होके फिर नॉर्मल हो जाता है, मतलब कम से कम 2 हफ्ता तो लगना ही लगना है कंफ्यूजन ठीक होने में। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट फॉर एनी स्पोर्ट्स इंजुरी इज, ट्रीटमेंट मतलब फर्स्ट एड, फर्स्ट एड फॉर एनी स्पोर्ट्स इंजुरी इज प्राइस, same thing for confusion also. You have to protect, P stands for protection, R stands for rest, I stands for icing, C stands for compression, and E stands for elevation. So these are all the 5 things which you should do. Then harm नहीं करना है, harm मतलब क्या है, H stands for heat, confusion के ऊपर कभी भी heat नहीं लगाना है, icing करना है, alcohol, अल्कोहल नहीं पिलाना है और उसके ऊपर अल्कोहल डाल के रब नहीं करना है, रबिंग एंड मसाज, ये 4 चीजें नहीं करना है कंफ्यूजन के ऊपर। क्या चीजें करना है, दैट इज प्राइस। देन यू हैव टू सेंड हिम टू अ डॉक्टर और अ हॉस्पिटल। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द ओवरयूज स्किन इंजुरीज। ओवरयूज स्किन इंजुरीज आर कॉज्ड बाय फ्रिक्शन एंड प्रेशर एंड ट्रॉमा। सो रिपीटेड फ्रिक्शन की वजह से होता है। So, बहुत सारे नाम दिया हुआ है, कॉन्स, कैलसेस, एथलेटिक नोड्यूल्स, ब्लिस्टर्स, एक्ने मैकेनिका, फिजियोजेनिक पैप्यूल्स, देन ट्रॉमा की वजह से टेनिस टो, ब्लैक हील, ब्लैक पाम, वो क्या है अभी हम धीरे धीरे से सीखेंगे। सो ये कॉन्स, कैलसेस, एथलेटिक नोड्यूल्स, ये सबको मिला के यू विल कॉल इट एज कैलोसिटीज बोलते हैं। ये सब नाम आप लोगों को इतना याद नहीं रहेगा, भी चल जाएगा, ठीक है, डरो मत, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्या है, होता क्या है, ये समझना पड़ेगा ताकि वो तुम लोग रोक सकते हो। सो कैलोसिटीज आर नथिंग बट थिकनिंग्स ऑफ सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द स्किन। जैसे एपिडर्मिस जो हमने बताया, वो अगर थिक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कैलोसिटी।
वो थिकनिंग 3 तरीके का होता है, एक बोलते हैं कॉर्न, एक बोलते हैं कैलस, तीसरा बोलते हैं एथलेटिक नोड्यूल्स। सो रिस्क फैक्टर्स क्या है? पुअर फुटवेयर, इल फिटिंग शू, टाइट शू, इरेगुलरिटीज इन शू, शू का और न्यू शू, अनअकस्टम्ड टू फुट प्रेशर, नया नया जूते पहना है, तुम्हारे पैर के हिसाब से वो सेट नहीं हो रहा है, दैट ऑल्सो कॉजेज द कैलोसिटीज। देन बोनी प्रोमिनेंसेस, जहां पे हड्डी बाहर की तरफ रहता है, हड्डी मतलब प्रोमिनेंट रहता है, जैसे एंकल के पास, जैसे पैर में, then also you will get callosities. Toe deformities like clawing of toes, hammer toes, मतलब toes जो होता है, toes मतलब हाथ का जो बोलते हैं fingers और पैर का जो बोलते हैं toes. So toes पे अगर कोई डिफॉर्मिटी है, सबका टो एक तरह नहीं होता है ना, किसी का दूसरा उंगली लंबा होता है, किसी का टो में मतलब ऐसे क्लॉ की तरह मतलब बेंड होके रहता है, that also will cause callosities. Then faulty foot mechanics, मतलब फ्लैट फुट में भी अंदर की तरफ जो आपका ग्रेट टो के नीचे है वहां पे कैलोसिटी बनता है, और हाई आर्च, अगर हाई आर्च है फुट का तो लिटिल फिंगर जो होता है, लिटिल टो, उसके नीचे कैलोसिटी बनता है, कॉन्स बनता है। दैट्स व्हाई आपका शू का शेप के ऊपर भी, आपका पैर का शेप के ऊपर भी डिपेंड होता है। सो बायोमेकेनिक्स ऑफ द फुट आल्सो अफेक्ट्स। देन इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, जो लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनमें होने का चांस ज्यादा रहता है। Now let us learn about the cons. मैं सिंपल सी तरीके से बताऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, ज्यादा इसके ऊपर स्पेंड नहीं करना है, बट द थिंग इज कॉर्न मतलब लोकलाइज्ड थिकनिंग होता है, जैसे आप लोग फिगर में देख सकते हो, एक जगह पे थिकनिंग होता है, खास करके पैर पे, सोल ऑफ द, मतलब ये सारी चीजें पैर पे और हाथ पे कॉमन रहता है। सो बिकॉज ऑफ रिपीटेड फ्रिक्शन, कोन शेप होता है, ये अंदर कोन शेप होता है, ऊपर राउंड होता है, नीचे कोने की मतलब कोन की तरह होता है, एंड इट इज वेरी पेनफुल, कॉन्स हमेशा पेनफुल रहता है। एंड ट्रीटमेंट इज बाय डेली फाइलिंग, कॉटरी, डेली फाइलिंग मतलब प्यूमिस्टोन लेके उसको स्क्रैप कर सकते हो। डोनट पैडिंग एथलेटिक्स में ये यूज करते हैं, स्पोर्ट्स में। इसमें क्या होता है, कॉन के ऊपर प्रेशर, ये सब प्रेशर और फ्रिक्शन की वजह से होता है, इसलिए ये पैड क्या करता है, प्रेशर निकाल देता है। अगर सेंटर में कॉन है तो उसको छोड़ के बाकी एक पैड लगा के फिर सॉक्स पहनो, ताकि दिस इज कॉल्ड डोनट पैडिंग। देन कैलोसिटी, कैलोसिटी मतलब ये फिगर देखो नीचे, इट इज अ थिकनिंग बट इट इज नॉट लोकलाइज्ड, एक जगह पे नहीं रहता है, ये पूरा फैला हुआ रहता है, एंड ये पेनफुल नहीं होता है। अगर जब ज्यादा होता है, ज्यादा थिक होता है तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट करता है, बट ये यूजुअली पेनफुल नहीं होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्न एंड कैलस। सो हाथों में भी लगता है, कहां पे दिखता है, इन गेम्स लाइक जिम्नास्टिक्स, वेट लिफ्टिंग, रैकेट स्पोर्ट्स, उसमें यू कैन सी ऑन द हैंड्स ऑल्सो। एंड ट्रीटमेंट इज प्यूमिस्टोन लेके उसको अच्छी तरह से हॉट वाटर में रख के फिर रब करो, और सैलिसिलिक एसिड करके एक मेडिसिन है, दैट कैन बी गिवन। Then what are athletic nodules? These are also called knuckle pads or surfers nodules seen in boxers और सर्फिंग जो करते हैं। ये जो फिगर्स देखो, these are nothing but the athletic nodules। हाथों में भी over the interphalangeal joints, खास करके फिंगर्स और टोस के ऊपर होता है एथलेटिक नोड्यूल्स, और फुटबॉलर्स के एंकिल में भी होता है। आप लोग देखा होगा फुटबॉलर को एंकिल में अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, जहां पे मैलियोलस होता है, एंकिल जॉइंट होता है, वहां पे इतना इतना ब्लैक ब्लैक करके मोटा सा रहता है, जहां पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। सो ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ प्रेशर ओनली, प्रेशर एंड फ्रिक्शन। सो कैसे प्रिवेंट करोगे? अच्छी तरह से सॉक्स पहनना है, ग्लव्स पहनना है, ताकि फ्रिक्शन और प्रेशर कम करोगे। एंड सैलिसिलिक एसिड अगेन। सो कॉन्स, कैलसेस एंड एथलेटिक नोड्यूल्स, अगर आप लोग कोई मेडिसिन देना है, दैट इज द सैलिसिलिक एसिड। उसका ये होता है, लोशंस होता है, क्रीम्स होता है, दैट कैन बी गिवन। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द ब्लिस्टर।
ब्लिस्टर में प्रेशर के साथ साथ थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए. मॉइस्चर मतलब डैम्पनेस. जैसे सॉक्स में पसीना आता है, मतलब पैर में, शू के अंदर पैर रहता है बहुत देर, मतलब पसीना आता है. दिस स्वेट causes some moisture. Moisture मतलब पानी की तरह. So what are blisters? Blisters are nothing but fluid or blood filled vesicles. इधर पानी हो सकता है या खून भी हो सकता है ब्लिस्टर के अंदर. You can see in this figure, नीचे जो देखो, this is a small blister because of repeated friction with the shoe. सेम थिंग, कोई इक्विपमेंट पकड़ रहा है, टेनिस रैकेट या कुछ, उसकी फ्रिक्शन की वजह से ब्लिस्टर बन सकता है. ब्लिस्टर्स पेनफुल होता है. अगेन, कॉन्स एंड ब्लिस्टर्स बोथ आर पेनफुल. Calluses and athletic nodules are non-painful. That you should remember. अगर ब्लिस्टर बड़ा हो गया, रप्चर हो गया, then you call it as an erosion. जो नीचे वाला स्लाइड में देखो, this is an erosion. रप्चर हुआ है. सो ट्रीटमेंट क्या करना है? ब्लिस्टर अपने आप ही ठीक हो जाता है, छोटा अगर है तो, जैसे इतना साइज में जो नीचे दिया हुआ है. बट अगर बड़ा है ब्लिस्टर, मोर देन 1 सेंटीमीटर, देन यू हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल. उसको अच्छा स्टेराइल नाइफ से कट करके ड्रेन करना है, उसके अंदर की पानी निकालना है. उसके बाद यू हैव टू मेक इट लाइक एन एरोजन एंड उसको ड्रेसिंग करना है. ब्लिस्टर को ड्रेसिंग करने के लिए मार्केट में नया सा पैचेस मिलता है रेडीमेड. दिस यू कैन परचेज इन योर फर्स्ट एड किट, दैट इज डिओडर्म ड्रेसिंग. ये थोड़ा मॉइस्चर रख के उसको जल्दी ठीक कर देता है. So these deoderm dressings or hydrocollator dressings can be used for treating the blisters. Blisters को कैसे प्रिवेंट करोगे? पेट्रोलियम जेली, मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है पैर में और टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन. और रिसर्च किया है कि कौन सा टाइप ऑफ सॉक्स पहनने से ब्लिस्टर्स और फ्रिक्शन कम हो जाता है. सो एक्रिलिक सॉक्स you can find in the market, अच्छे कंपनी का, जैसे कॉटन सॉक्स होता है, वुलन सॉक्स होता है. सिमिलरली एक्रिलिक सॉक्स, ये सॉक्स क्या करता है, क्योंकि ब्लिस्टर्स फ्रिक्शन और मॉइस्चर की वजह से होता है, ये पैर का जो मॉइस्चर है वो अब्सॉर्ब कर देता है सॉक्स, और गंदा स्मेल और स्वेट ये सब अंदर रहने नहीं देता है. सो दीज विल हेल्प इन, वेयरिंग ऑफ एक्रिलिक सॉक्स विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग द blisters because they absorb the sweat inside the foot and keep the foot dry. Or you can use powders. सॉक्स पहनने से पहले अच्छा से डस्टिंग पाउडर डाल के, कोई भी टाल्कम पाउडर, डस्टिंग पाउडर कुछ डाल के, ताकि पसीना नहीं आना है. सो पसीने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से होते हैं ये ब्लिस्टर्स. क्लियर? 1 सेंटीमीटर से बड़ा है तो डॉक्टर के पास लेके जाओ, खुद छेड़खानी मत करो. There are certain less common skin conditions like black heel and black palm. Black heel क्या है? ये भी फ्रिक्शन की वजह से ही होता है, लेकिन seen in sports with sudden stops and starts like tennis, basketball, badminton, जहां पे sudden stop, sudden start होता है. जैसे मैराथन में कंटिन्यूअसली भागता रहता है, सडन स्टॉप स्टार्ट नहीं होता है ना. सो ऐसे स्पोर्ट्स में क्या होता है, प्रेशर की वजह से सडनली स्टॉप कर रहा है, जो एपिडर्मिस में जो ब्लड वेजल्स होते हैं वो रप्चर होके ऐसे पूरा कालापन हो जाता है. दिस इज कॉल्ड ब्लैक हील. सिमिलरली वेट लिफ्टर्स में, रैकेट स्पोर्ट्स में, ड्यू टू रिपीटेड लिफ्टिंग, ब्लैक पाम जो नीचे दिया है ना, फिंगर के नीचे जो ब्लैकनेस है, ये सब डरने वाली बात कुछ नहीं है, ये अपने आप ही ठीक हो जाता है. एथलीट को ओनली ये बोलना है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बस सुपरफिशियल स्किन में ब्लड वेजल्स रप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग हुआ है, एंड पेन नहीं रहता है. ये ओनली कलर देख के डरते हैं बच्चे. सो दे विल हील बाय देमसेल्व्स, so no need to do anything for them. Then one more condition is football acne. फुटबॉल एक्नी को बोलते हैं एक्नी मैकेनिका. ये एक्नी मतलब पिंपल्स है, नॉर्मल जो फेस पे जो पिंपल्स होता है, दैट यू कॉल इट एज एक्नी. बट
अभी फुटबॉल में क्या होता है, फुटबॉल में नहीं, बिकॉज ऑफ वेयरिंग ऑफ योर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक हेलमेट, लाइक योर शोल्डर पैड्स, चेस्ट गार्ड, शिन पैड्स, ये पहनने की वजह से, कांस्टेंट प्रेशर की वजह से क्या होता है वहां पे, जहां पे जैसे ये फिगर देखो, छिन के पास बहुत सारा लीजन्स हुआ है. सो बिकॉज ऑफ वेयरिंग ऑफ चिन स्ट्रैप ऑफ द हेलमेट, यहाँ पे बैक में शोल्डर पैड्स और बैक कवर करने की वजह से, मतलब इक्विपमेंट की वजह से जो एक्ने की तरह होता है, दैट इज कॉल्ड फुटबॉल एक्ने. यूजुअली अमेरिकन फुटबॉल में ज्यादा इक्विपमेंट पहनते हैं, इसीलिए मोस्ट कॉमनली सीन, दैट्स व्हाई यू कॉल इट एज फुटबॉल एक्ने. सो एस्ट्रिंजेंट और आइसोट्रेटिनोइन जेल, ये एक जेल है, एक्ने में यूजुअली यूज करते हैं, वो इसमें भी यूज कर सकते हो. Okay, now let us look into, there is one more condition called piezogenetic papules. ये इतना important नहीं है, but जैसे हमने डिस्कस किया है एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस फैट, ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से, ज्यादा प्रेशर की वजह से क्या होता है, वो जो सबक्यूटेनियस फैट है, वो फैट ऐसे बाहर आ जाता है हेर्निएट होके. जैसे आप ये फिगर में देख सकते हो, यू आर सीइंग येलो येलो स्पॉट्स, दिस इज नथिंग बट द फैट. They are also painless. ये भी कोई painful conditions नहीं है. So you can use heel pad or heel cup to prevent these papules. So important overuse conditions क्या क्या है? एक है corns, calluses, blisters. These are very common and very important, which have to be prevented. Then the other conditions में बस, because you have to learn all this to become a coach, that's why I'm telling you all this, but most important are corns, calluses and blisters. So now prevention of overuse or friction injuries. कैसे prevent करोगे? क्योंकि risk factor में footwear है, you have to wear the appropriate customized footwear or insoles. मतलब फुट के हिसाब से आजकल मार्केट में जो खास करके अपने एलीट एथलीट्स यूज करते हैं कस्टमाइज्ड इंसोल्स, मतलब उसके फुट के प्रेशर के हिसाब से, प्रेशर पॉइंट्स के हिसाब से इंसोल्स बनाते हैं, दैट विल हेल्प देम. देन हाथों में कुछ ये सब प्रिवेंट करने के लिए व्हाट यू शुड डू, यू शुड वेयर ग्लव्स एंड प्रोटेक्टिव पैडिंग. देन एक्रिलिक सॉक्स टू प्रिवेंट द ब्लिस्टर्स. Avoid activity for prolonged period. Avoid keeping the foot in the shoe. जितना जरूरत है उतना ही शू में पैर रखो. Then prevent excessive dryness. जैसे corns, calluses, ये सब excessive dry skin से भी होता है with petroleum jelly, and excessive moisture using powders. पैर ज्यादा भी गीला नहीं होना है, ज्यादा भी सूखा नहीं होना है. ड्राइनेस को कैसे प्रिवेंट करोगे? पेट्रोलियम जेली यूज करोगे. और मॉइस्चर को कैसे प्रिवेंट करोगे? डिफरेंट तरीके का पाउडर्स यूज करके. आई होप आई एम क्लियर. अगर कोई भी डाउट्स है तो शाम को पूछ लेना डिस्कशन के क्लास में, ठीक है? ओके, नाउ इट्स 10:30 एंड यू कैन लीव द क्लास.